किसी ने मुझे थोड़ा भी भाव दे दिया तो मैं बिछ जाती थी. मुझे लगता था he is in love with me. He troubled me a lot. He had affairs. He had this, that. One that you met in Dove but never married, Viv Richards. मुझे ना जीने का बहुत शौक है. I was not a lallu. I knew I'll have a tough life. मेरी उम्र के आदमी हीरो हैं, पर मैं हीरोइन नहीं हो सकती. A strong woman is a negative woman. God has been very good to me. He's been my friend. So you were 20 when you got married, still very young. Things did you watch growing up that really influenced you? वो एक्टिंग और ये जो प्रोफेशनल करियर पाथ था वो साइमल्टेनियसली कैसे हो रहा था? In college, I had Sanskrit as a subject, but I really liked the literature. And so I took up my MA Sanskrit. And in the meantime, I got interested in plays, doing plays, theatre in Delhi. That's how I got into National School of Drama. So then when I did my MPhil, my subject of my this thing was stage techniques in Sanskrit drama, theory and practice. Okay, so I wanted to combine my drama training with my Sanskrit. Okay. And I wanted to do my PhD in this subject. And I enrolled for my PhD. I didn't want to do films. I wanted to do theatre and do the research. I could never tell the person in charge that take me because I can act well. And then I used to watch other people acting, and then I used to go back home and act in front of the mirror and realize that I can do better than them. But I had no courage, even till college, no courage to go up to somebody and say that I'm good, take me, you know. Immediately after passing out, Ashok Ahuja was making a film, the director producer, and he took all of us theatre people. Naseer भी था, Anita, बहुत लोग थे, कौशिक के वो सब थे. तो then they took me. और फिर जब मैंने अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखा, मैंने कहा अरे This is it. this is it. Wow. Yeah. I came to Bombay in 1981. I came with the Gandhi group. I was doing a role in Gandhi film. So 81, I came here. Now it's 24. How many years? 40 something. Math is not my strong suit. Mine also, so I don't know. It was only movies here. Then DD Metro started, Doordarshan. There was a lot of casting couch and all when I came because we were not. It was very difficult to even meet a big producer director. Couldn't meet. Then the art film people we could meet because they respected people from School of Drama. I'm from School of Drama. So Shyam Benegal, Govind Helani, Syed Mirza, these kind of people we could approach. So, but there also we got smaller roles. They had their own hierarchy thing, you know. So it was very difficult. I did like in movies, someone's servant's role and things like that. Then DD came. Then when DD came, then Satellite came. Then in Satellite, I did very well. I made my own serials and all that. So slowly it changed. Now there is a major change with OTT. Now a woman like me at my age is also getting important roles, pivotal roles. And also the younger generation, the new generation is much more respectful to women than those years when there were only films and things like that. सिर्फ हमारे को because NSD से थे, श्याम बेनेगल ही मिलते थे या गोविंद हेलानी मिलते थे. वो भी मिलते तो थे, वो भी छोटा रोल देते थे. मेन रोल तो शबाना आजमी और स्मिता और उधर दूसरी तरफ दीप्ति को मिलते थे. हमें वहाँ भी मेन रोल आज तक नहीं मिले. मेरे को कहीं मतलब बधाइयों से पहले कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला. Interesting that you're giving credit to this evolution to Satellite, OTT, the different platforms. But clearly there's also a difference in the way the roles are even written for women, don't you think? The types of roles that we see. अच्छा नीना, आपने ख़ानदान में केतकी का रोल किया था और इतनी अच्छे तरीके से किया था, इतनी बखूबी निभाया उस रोल को कि आपके फैंस और दर्शक समझने लगे आप असल ज़िंदगी में केतकी. अरे बाप रे. तो क्या आप बता सकते हैं कि असल ज़िंदगी में आप कैसी? मैं असल ज़िंदगी में क्या हूँ ये मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि जो लोग देखते हैं वो असल नहीं होता, वो हम एक्टिंग करते हैं.
और अगर जो हम करते हैं वो असल होने लगे तो फिर तो हम मर जाएंगे, क्योंकि अगर 1 मिनट में मैं केतकी करती हूँ तो दूसरे मिनट में मैं कबीर करती हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा. The Choli ke piche girl in Khalnaik, you really caught the fancy of the country. But was that a fun role? While doing it, it wasn't fun because Subhashji used to tell me at certain times that he's not getting what he wanted from me, and for me it was very frustrating. And but I learned a lot because he said that don't sing a song, act a song, mean what you are saying, and this is what I started doing later on, and that's why the expressions came. स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी, अक्षत नहीं पढ़ के सुनाई थी, तो आफ्टर ही फिनिश आई सेड हाँ बताओ कब शूटिंग करनी है. तो उसमें तो मुझे कुछ सोचने की बात नहीं थी. स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, मेरा रोल बहुत अच्छा था. एक्टर के लिए क्या, जैसे ही सुनो और आपको एक्साइटमेंट हो जाए मतलब करना है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं होती कि इसमें ये करूँ, आपको पता चल जाता है. जहाँ तक पेट लगा के घूमने की बात थी, तो मैं उस दिन सोच रही थी, शुरू में जब मैं सेट पे आती थी पेट लगा के, वैनिटी वैन से पेट लगा लेती थी और ऊपर एक दुपट्टा पहन के ऐसे उसे ढक ढुक के आती थी सेट पे. फिर धीरे धीरे मैंने दुपट्टा हटा दिया, मैं आने लगी, मतलब आदत पड़ गई, थोड़ा सा यूज्ड हो गए. फिर धीरे धीरे मैं सेट पे ही पेट लगा लेती थी यूँ मुड़ के. तो सो ऐसा एक वो था. शुरू में थोड़ी एज अ पर्सन झेप होती थी, बट एक्टर को तो सब कुछ करना चाहिए. पर वैन से उतर के सीढ़ी चढ़ के लिफ्ट में जाके सेट पे पहुंचने, बॉम्बे में शूट किया था, तब मैं ऐसे चुन्नी मुन्नी करके आती थी. एंड अदरवाइज आई वाज टेलिंग समबडी दैट आई डिडंट इवन थिंक ऑफ, आई डिडंट यूज माय ब्रेन एट ऑल. इसका मैं सोचूं, कोई और मेरा सोचूं जो ऐसी है उसके ऊपर काम करूं, किसी रोल के ऊपर नहीं, काम नहीं करती. एक्चुअली मैं रोल पे काम नहीं करती. मेरा तो स्ट्रेट फंडा है कि अगर मेरी इतनी कंसंट्रेशन है कि आई कैन मीन द लाइन विच आई एम स्पीकिंग, देन आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. कपड़े करेक्ट है, सेट करेक्ट है, डायरेक्टर करेक्ट है, को एक्टर करेक्ट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लाइन ही बोलनी है. और वही सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है बीच बीच में. सो दैट्स व्हाट आई डिड बिकॉज एवरीथिंग एल्स वाज सो करेक्ट दैट आई जस्ट flowed with the whole thing. I have suffered all my career because of my personal life. Because of my personal life, I have not gotten roles which I should have got. I had a baby without getting married because I wear shorts, spaghetti strap dresses. So in between, I got so discouraged. I started wearing, salwar kameez, dupatta if I go to somebody's office so that I get, because those are the kind of roles you get in movies. You've been engaged twice but never married. As you look back on it, would you consider that a great escape, or is there a little regret about it as well? Escape is not a nice word. No, I don't know what it is. I feel that everything is written by some power, and it was written for me that will not happen. Do you believe in fate? Yeah. Do you believe that your whole life is sketched out by someone? Yeah, it is. But that doesn't mean that I won't work hard. I'll still work hard. But then if it's all sketched out, how does working hard make a difference? It makes you feel good about it. It has some hope. But I believe absolutely it's written. There was someone that you met and loved but never married, Viv Richards. Was that a conscious decision not to marry, or was that just the way things worked out? No, he was already married, so I couldn't marry him. Would you have liked to? Yeah. You became very close to him. Yeah, I was very close to him. Would you say he was perhaps the only man in your life that really mattered? Yeah, because for 13, 14 years I was with him, and actually I think I really loved him very much. What attracted you to him? Because he's someone that the world in a sense knows as a cricket player, not as a human being. No, I knew him more as a human being, and I think he's a very, very good human being. Very, very difficult to explain actually. I liked him. There's a point of time in the media you were judged, you were shamed, and a section of it started calling you fearless and started saying that you are the modern Indian woman. You didn't take either of the labels to yourself.
Was it difficult at that point? Do you still feel that there is that stigma attached to scenario like that? Yeah, it is there, it won't go. It will always be there. And it is always difficult to face these things, and in future also it will be difficult. So nothing much has changed. We talk about change, women change. वो इतना से है हम लोग, बाकी तो वैसा ही है. मुझे स्ट्रॉन्ग ये बना दिया मीडिया ने. स्ट्रॉन्ग मीन्स नेगेटिव, है ना. तो नेगेटिव रोल मिलते थे, और नेगेटिव रोल बहुत बुरे से लिखे जाते थे उस ज़माने में, जब फिल्में और ये सब लड़कियों के लिए खास करके. तो उसमें कुछ था नहीं. तो अब बधाई हो से मेरी इमेज बदल गई. तो इसलिए अब मुझे नॉर्मल रोल मिलते हैं, जो जैसे मंजू देवी है, नॉर्मल औरत है. बधाई हो में भी मैं नॉर्मल हाउसवाइफ थी, उसमें स्ट्रॉन्ग कहाँ थी. आप जैसे हम जैसे सब एक जैसे ही थे ना उसमें. ये एक इमेज बनाई है, अब चलने दो, चलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मंजू देवी के इस किरदार को आपने बिल्कुल अच्छे से दर्शाया लोगों तक. और हमें ये भी पता है कि आप उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ बहुत खूबसूरत है, वादियाँ हैं, ठंड है. व्हाट इज द डिफरेंस जब आप ये रियल लाइफ प्ले करती हैं, रियल लाइफ प्ले करती हैं, और मौसम का क्या मेन डिफरेंस होता है? वैसे तो वो हेवन, हम जब पहुंचते हैं वहाँ तो हेवन हो जाता है, क्योंकि अच्छा मौसम, अच्छा दृश्य, ये वो. लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ. तो उस वक़्त धूल, मिट्टी, 47 डिग्री तकलीफ़ होती है, पर अगर काम अच्छा होता है तो वो तकलीफ़ नहीं होती. मैंने इस बार जब मैंने सीज़न 3 किया तो हमने फिर से बाई चांस लोगों की डेट की वजह से गर्मी में, बहुत गर्मी में किया. हम मलमल गीली करके मुंह पर डाल के रहते थे, गले में डाल के रहते थे. एक शॉट था मेरा, चाहे कितने भी छाते हों, जब वो रेडी होते थे साउंड एक्शन से पहले, थोड़ा बहुत कुछ लाइट इधर हो गया, थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है. तो छाता जब एक मैं शॉट में थी, तपती धूप ऊपर छाता, उन्होंने कहा साउंड दिए तो छाता निकल गया ऑब्वियसली, और फिर थोड़ा टाइम लगा. और मैं ना ऐसे जल रही थी, अपने पल्लू को ऐसे करके जल रही थी, और मैं कुड़ रही थी कि ये क्या. देन ये बड़ा इम्पोर्टेंट, इसलिए बता रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन लाइफ विच आई लर्नड. ओके, देन आई सेड, देख नीना, तू यहाँ से भाग नहीं सकती, है ना. तू चैचा नहीं कर सकती, शॉट रेडी है, तेरे को करना ही है, शॉट तो करना ही है, काम करना ही है, ये शेड्यूल करनी ही है, अगली भी करनी है, तो एक्सेप्ट इट. आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसे आँख बंद कर के मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ एक्सेप्ट द हीट. व्हेन आई टोल्ड दैट, ठीक हो गई मैं. तो इट इज़ लाइक व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहाँ से आप निकल नहीं सकते, जो आपको करना ही है, यू हैव टू एक्सेप्ट. अगर आज मेरी शूट है, एक दिन पहले ये मुझे मेरे डायलॉग्स वॉइस नोट में भेजते थे. अच्छा. क्योंकि लैंग्वेज इज डिफरेंट. डायलेक्ट इधर से उधर हो जाए तो सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है. फर्स्ट सीजन में ये मुझे एक दिन पहले वॉइस नोट मेरे को भेजते थे, जो मैं सुन के फिर वहाँ बार बार सुन सकती. इस सीरीज में खासकर बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट डायलेक्ट देन हिंदी, देन प्योर हिंदी. सो उसके लिए थोड़ा सा एक तो सब जो ये जानते हैं डायलेक्ट, और भी बहुत लोग जानते हैं, एक्टर्स भी कुछ जानते, तो उनसे मैं पूछती रहती हूँ. फिर ये लोग मुझे बता भी देते, थोड़ा शहरी लग रहा है, चेंज कर लो. यही होता है, वरना ऐसा कुछ नहीं. एक बार वो वाले कपड़े पहन लिए, सर पे पल्लू डाल लिया, तो हो जाता है. It is you and Raghuveer sir, and when you look at this image, it's from back in the day, from then to now, when you see the journey, was there ever a time when the two of you all sat and looked at the journey that you've had? Even he's had hits like PP Live and I mean charismatic characters, right? तो कभी बात करी आपने उनके साथ in terms of the journey? हमारा पता है क्या है, एक अजीब सा संबंध है. हमने ज़्यादा काम नहीं किया बीच में, हमने हार्डली काम किया इकट्ठा एक्टिंग वाइज. पर जब मैं मिली पंचायत में, उनको ऐसा लगता था बरसों से जानते हैं, शायद रोज़ ही मिलते आए होंगे, शायद मैं उनको मिली होंगी 15 साल बाद या 20 साल बाद. सो देयर इज अ कनेक्शन. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम इन माई NSD डेज.
तो ऐसा संबंध है हमारा कुछ। ऐसा मौका मिलता रहे, मैं तो ये चाहूँगा कि बड़ा मज़ा आता है उनके साथ, क्योंकि थिएटर से उनका ताल्लुक़ रखा है, साथ साथ में उसी ज़माने में थे जो हमारी जो उस वक्त जिस तरह की काम करते थे वो भी अभी भी बरकरार है, क्योंकि हमें थिएटर में जो सिखाया गया, हम पूरे टीम होता है, ये टीम वर्क है, पूरे यूनिट के साथ हम जो टीम वर्क, चाहे वो चाय पिलाने वाले हों, चाहे वो लाइट्स बॉय हों, चाहे वो कैमरामैन, हम सब मिलके काम करने का जो हम लोगों का तरीका है, जो सलीका है, बस ये पंचायत में है। इस वजह से सब सारे लोग इस तरह मिलजुल के काम करते हैं। तो नीना जी मिल गए सब हम लोग थिएटर के लोग, तो जाहिर है कि हमें लगता नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं, हम तो ऐसा लगे एक परिवार है जो हम मिल के काम कर रहे हैं। एक ना चीज होती है, एक वर्ड हिंदी में फूहड़पना, वो फूहड़पना नहीं आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है, और वो डायरेक्टर और एक्टर दोनों पे निर्भर करता है कि हम उसको, क्योंकि आप एक उम्र के बाद एक कपल को फिजिकली बहुत क्लोज नहीं दिखा सकते, वो फूहड़ लगेगा, है ना। तो वो सेंसिबिलिटी आ जाए तो क्या क्या स्टोरीज बन सकती हैं। Some people are writing for me. I'm getting main parts to play. I'm getting better money, better reviews, better respect. Yeah, it's changed.